to join, and then we will start. Okay. Yes, Swati had joined. Yes, she had joined. Good. Yes, Swati is also there in the class. Swati, can you hear me? Yes, sir. Again, hope you are not traveling, right? Are you? No, sir. No, sir. Good. All right then. So as you know, right, what you have to keep, always you have to keep your camera and mic on, okay? Whenever I ask anybody randomly, you should respond, okay? Okay? All right. So Swati, you can keep your camera on if possible to you. Possible for you then. All right. So everyone has got a notebook, right? So first, whenever I ask you to note it down, that time you note it down. Okay. When I explain something, please pay full attention on listening and understanding. Writing part, I'll give you enough time to note it down. Is that all right? Yes, and this instructions remains the same throughout all the classes. Whenever I'm explaining something, whenever I'm clearing any doubts, first focus on listening only. All right. And when I ask you to note it down or while explaining some doubts are there, you can let me know immediately. All right. So we will be starting with the first topic, that is arithmetic progression. Have you heard the name before, arithmetic progression, Arohi? Yes, sir. Yes, sir. You have heard the name. All right. Karthik, you have also heard. Good, good. So we will be starting with that particular topic and then we will go further with the other topics. So in this arithmetic progressions, there are few subtopics. Like first, we will be talking about the introductions part of it, and then we will discuss about what is actually arithmetic progression. And then there is something known as nth term of an arithmetic progression, and there is something known as n terms of an arithmetic progression, how we can add it. And there are few miscellaneous problems we will discuss. All right. So let's start with the introductions part. What is like, okay, suppose if I give you a number, let's say, suppose we have 3, then we have 5, then we have 7, then we have 9, something like that, if it keeps going on, right? Or if I write like 1, then I write it as 0, then we write it as -1, then we write it as -2, and so on, right? So if you observe these two given sequences, right, can you observe some kind of pattern here? Yes, Yes, sir. sir. Yes, there is a pattern in each kind of thing. So suppose if you see here, observe carefully. So what happens every time you are adding 2 to the previous term? So suppose you are given with 3 here, right? And when you add 2 to it, you will get 5. Same way, if you again add 2 to it, you will get 7. Again, if you add 2 to it, you will get 9. So if somebody asks me what will be the next term, easily I can judge it. That is nothing but 11, right? Again, if somebody asks me after that what term will come, so that is 13 and so on. You can easily identify, right? Yes, sir. Same way, if you observe the second one, what happens here, it is 1 and then 0 and then it is -1, then -2. So actually what happens, whatever the previous term is there, if you are subtracting 1 to it, like from 1, if you subtract 1, you will get 0. Again, if you subtract 1 from 0, you will get -1. From -1, again, if you subtract 1, you will get -2. So suppose somebody asks me what will be the next term, easily I can say -2 -1, that is -3. Again, from -3, if somebody asks me what will be the next term, so -3 -1, it will be -4 and so on. Is that all right till here? So same way, suppose if I give you another sequence, let's say it is 2, then 4, then 8, then 16, then 32, and so on, right? Now again, if you observe here, there is a kind of pattern. So what happens in this pattern,
with the previous term, if you just multiply by 2, you will get the next term. So 2, if you multiply by 2, you will get 4. 4, if you multiply by 2, you will get 8. 8, if you multiply by 2, you will get 16, and so on. So suppose if somebody asks you what will be the next term, so it will be 32. What will be the next term? It will be 64, and so on, right? But suppose somebody asks you find the 100th term directly, what will you do? No idea, right? Because you cannot sit and write first term, second term, third term, fourth term, fifth term, sixth term till 99 term, and then 100 term. Then exam will be over. You will finish only one question, right? Suppose if I give you this pattern and if I ask you to write the 100th term, right? You cannot sit and write everything once, first term, second term, third term, fourth term, fifth term, sixth term, and so on till 99th term and then 100th term. That is practically not feasible. It will take a huge amount of time, right? So there must be some method how we can directly say what will be our 100th term or maybe 500th term or 150th term, something like that. There will be some process. So which we will be discussing how to do it, right? All right. So what happens whenever you are able to observe some kind of pattern? So these kind of things are known as sequence. Okay. These kind of things are known as sequence. There's a fixed kind of pattern. Suppose if I take another example, let's say 1, 5, minus 2, 0, 11. So in this case, what happens? There is no pattern followed here. Is there any pattern you can observe? No, right? Sir. So there is no pattern here. So we cannot generalize something about it, right? So we cannot say it is a sequence. So always remember, whenever you have a fixed pattern followed, whatever the pattern it is there, if it is pattern is followed, that is called a sequence. All right. So if there are various types of sequence. First, we have to learn about arithmetic sequence, or you can say arithmetic progression. So these are like synonyms, whether somebody calls arithmetic progression or arithmetic sequence or arithmetic series, everything is same. Don't get confused, okay? So we will be talking about arithmetic sequence and arithmetic series, okay? So what it says that, suppose if I take the first example itself, that was 3, 5, 7, 9, right? There was 3, 5, 7, 9, and so on. So what we have observed, a fixed number is always added to get the next term. So every time we are adding 2 here, right? Every time we are adding 2 here. Are you getting it? So always remember, if a fixed number is always added or subtracted to a given set of numbers, that set of numbers is called as arithmetic progression. Okay, let me again explain it. Suppose a given set of numbers are there, okay? Now what happens, the next term is always something added or subtracted to the previous term. So that kind of sequence or series is called as arithmetic sequence or arithmetic progression. So here, if you observe carefully, I'm always adding a fixed number, that is 2, and hence it is nothing but an arithmetic progression. Suppose let's take another example, 1, 4, 7, then 10. Again, if you see here, this is nothing but an arithmetic progression because we are always adding a fixed number, that is 3. Yes or no, Karthik? Yes, sir. Are you getting it, Arohi? We are always adding a fixed number to the previous term. So this is a fixed pattern where every term is like something is added to the previous term. So this kind of sequence or series will be called as arithmetic sequence, okay, or arithmetic progression. See, please understand, if I use the word arithmetic progression or arithmetic sequence or arithmetic series, all are same. Now suppose just now we have observed one more example, like 2, then 4, then 8, then 16, and so on, right? Now if I ask you, Arohi, is this an arithmetic progression or not? Please tell me. Yes, sir. No, it is not arithmetic progression, right? You are not always adding a fixed number, right? Here you are multiplying a fixed number, but what I told, you should always add or subtract a fixed number.
Are you getting it? Here what happens, here you are multiplying by 2. This 2 is multiplied by 2, and then again it is multiplied by 2, and again it is multiplied by 2. But what I told you, you should always add or subtract a fixed number. Then only it is arithmetic sequence. Otherwise it is not. Is that all right? Yes, sir. Are you getting it? 2, 4, 8, 16. It is a sequence for sure. But it is not an arithmetic sequence. Is that all right? Yes, sir. Any doubt, Karthik? No, sir. All right, good, very good. So you understand the meaning of arithmetic progression. So always a fixed number will be added to the previous term to get the next term. So let's take one simple example to understand this, okay? So for the AP means arithmetic progressions, 3 by 2, 1 by 2, minus 1 by 2, minus 3 by 2, write the first term. So what is the meaning of first term? Whenever any sequence or series is given to you, that is your first term, which is generally denoted by small a. So here can we say that for the given set of numbers, our first term, that is a, is nothing but 3 by 2. Any confusion? Now the next thing is about the common difference. So common difference also we will discuss here. So whatever the fixed number you are adding, okay, whatever the fixed number you are adding or subtracting to get the next term, that is known as common difference. Is that all right? Whatever fixed number you are adding or subtracting, that is called as common difference. For example, the first series was given as 3, 5, 7, 9, and so on, right? In this case, suppose if I have to find the common difference, how will you find it out? What is added here? 2. So how will you find it out? Always do second term minus first term. Is that all right, Arohi? Don't do first term minus second term. What you have to do? Second term minus first term. Never do first term minus second term. Is that all right? Yes, क्या sir. करना है आरोही? You should always do second term minus first term. So in the first arithmetic sequence, if somebody asks me what is the common difference, it is nothing but 5 minus 3, that is 2. Is that all right? Yes, sir. All right, very Yes, good. sir. Even if you do third term minus second term, you should get the same thing. That is 7 minus 5, that is nothing but 2. Even if you do fourth term minus third term, that is 9 minus 7, that is 2. So every time if you see, you are getting the difference same, and that is the reason the name is given as common difference. What is the name given here? Common difference, and we denote it by small d. Is that all right? In general, first term of an arithmetic progression is denoted by small a, and common difference of the arithmetic progression is denoted by small d. Is that all right? Yes, Most sir. important thing, many of the students commit mistake. How they do mistake? They do first term minus second term. No, that is wrong. You should always do second term minus first term, or you can do third term minus second term, or you can do fourth term minus third term, or you can do 10th term minus 9th term, or you can do last term minus last but one term. Is that all right? Yes, sir. Any problem, Karthik? No, sir. Very good. So you understand how to find the common difference of any arithmetic progression? Yes, sir. All right, good. So here they are asking you write the first term. So writing the first term is very simple. That is 3 by 2. Common difference, if you have to find it out, so what you have to do? Either you can do second term minus first term. That is 1 by 2 minus 3 by 2. What I've told you? Always do second term minus first term. So second term here it is 1 by 2 minus first term is 3 by 2. So 1 by 2 minus 3 by 2 is minus 2 by 2. That is minus 1.
ये समझ में आया आरोही? हाँ सर। एनी डाउट स्वाति? नो सर। ऑल राइट, तो अब तो पता चल गया होगा ना, कभी भी अगर एक सीक्वेंस दिया हुआ है तो तुम्हें ऑब्जर्व करना है वेदर इट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और नॉट। वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल है। क्या करना है ना, हमेशा मान लो अगर तुम्हें 4 टर्म्स आर गिवन टू यू, सो यू डू सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, third term minus second term, fourth term minus third term. If every time you are getting the same answer, right, it means that the given series or given sequence is arithmetic progression. Yes or no, Swati? मैं फिर से बोलता हूँ, if there are 4 terms or 5 terms or any number of terms are given to you, if you want to check whether it is arithmetic progression or not, it's a very simple. Just do second term minus first term, third term minus second term, fourth term minus third term, and so on till last term minus last but one term. If every time if you are getting the same answer, then you can say that the given sequence or given series is in arithmetic progression. Is that all right? और जब when you know that the given sequence or series is in arithmetic progression, writing its first term is very easy. वो तो दिया रहता है ना डायरेक्टली, फर्स्ट टर्म as it is, उसको हम लोग जनरली स्मॉल a से डिनोट करते हैं, ठीक है। The next thing is about the common difference. Common difference you know, right? How to find it out? Second term minus first term कर लो या third term minus second term कर लो, same ही आएगा, right? Whether you do second term minus first term or third term minus second term, same ही आएगा. That is your common difference. Is that all right? Yes sir. Yes sir. Any confusion till here? No sir. No, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या बोल रहा है ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग लीस्ट नंबर ऑफ फॉर्म्स एन एपी। तो यू टेल मी, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं 4, 10, 16, 22 एंड सो ऑन, आर दे फॉर्मिंग एन एपी और नॉट? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक वेदर Yes sir. series is an AP or not. Yes sir. Yes sir. Yes. How to decide whether it is AP or not? तो जो मेरा Sir, नंबर comment है, difference. यस जो 4 है, फिर 10 है, फिर 16 है, फिर 22 है, राइट, एंड सो ऑन, इट कीप्स गोइंग ऑन। तो हमेशा मेरे को चेक करना है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं। तो क्या करेंगे, इसको जो सेकेंड टर्म है, यस, तो इसमें 10 माइनस 4 कर लेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, राइट, तो 6 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, ये क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। उसी तरीके से फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, ये भी 6 आ जाएगा। तो देख रहे हो ना कि हमेशा सेम ही डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि द गिवन सीक्वेंस इज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इज दैट ऑल राइट? यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं सर। नाउ यहाँ पे क्या बोल रहा है ना कि इफ दे फॉर्म एन एपी राइट द नेक्स्ट 2 टर्म्स। अब ये मेरे को पता हो गया है ना कि ये एपी में, तो नेक्स्ट 2 टर्म्स कैसे आ जाएगा? यस, वेरी गुड। यहाँ पे 22 है तो फिर 6 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। 28 के बाद 6 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 34। वेरी गुड। अब मैं बोलूं कि अब नेक्स्ट इसका 100th टर्म लिखो, तो क्या लिखोगे अक्षत? Sir, can I tell? हाँ बोलो। Let me calculate. 100th टर्म कैसे कैलकुलेट करोगे, एक एक करके लिखोगे क्या? 98, नहीं sir, 80? I have a formula. Sir. हाँ चलो, फॉर्मूला अभी नहीं आया इस कार्तिक, आई वाज जस्ट आस्किंग, बट वी विल गेट टू नो, ओके, दैट पोजीशन वी विल लर्न हियर। जस्ट फोकस हियर। पहले तुम्हें कोई सीक्वेंस दिया हुआ है तो तुम्हें पता है ना कि वेदर टू इट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और नॉट, चेक कर लोगे ना कैसे करना है जो? हाँ सर। आरोही, विल यू बी एबल टू डू इट? गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट उसी तरीके से अगर मेरे को सेकंड दिया हुआ है सीरीज सीक्वेंस 1, -1, -3, -5, ये बताओ आरोही, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं? चेक करके सब लोग चेक करो, फिर मैं जिससे पूछूंगा आंसर वही बताना, ठीक है? एवरीबडी प्लीज डू दिस क्वेश्चन। तुम्हें एक सीरीज दिया हुआ है, तुम्हें बताना है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं। अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है देन यू हैव टू टेल द नेक्स्ट 2 टर्म्स। करो सब लोग, अच्छे से करो, आराम से करो। Yes sir. Yes sir. पक्का है? Yes sir. ठीक है। -7, -9. Yes sir. ये तो NCERT में है sir. अरे 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 अरे, ये सब मछली मार्केट मत बना दो, मैंने बोला ना सब लोग करो। मैं जिस NCERT के बुक है सर। अरे अरे सब कुछ मिलेगा, मैं वही बोला ना करो, लेकिन मैं जिससे पूछूंगा वही बताना।
बस करके रख लो, जिससे मैं पूछूंगा बस वही बताना, ठीक है। ओके सर। अभी आराम से, अभी मतलब अभी तो ट्रेन स्टार्ट हुआ, अभी तो शताब्दी एक्सप्रेस बनना बाकी है, तो रिलैक्स। सर हो गया। अच्छी बात है। सर आरोही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या? नहीं सर। नहीं है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, देख करते हैं, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं इसको। जैसे जो तुम्हारा नंबर था आरोही, क्या था? 1 है, उसके बाद क्या है? -1 है, इसके बाद क्या है? -3 है, उसके बाद क्या है? -5 है, राइट। तो हम लोग को अगर चेक करना है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं, तो क्या करते हैं ना, जो सेकेंड टर्म वाला वैल्यू होता है ना, सेकेंड टर्म दैट इज -1, और उससे फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो -1 कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा, राइट आरोही? हाँ सर। उसी तरीके से फिर थर्ड टर्म का जो वैल्यू है और सेकेंड टर्म का वैल्यू और सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सेकेंड टर्म में ना -1 है, तो -(-1), थोड़ा ध्यान से रखना, राइट। इसको या तो ब्रैकेट में भी लिख सकते हो ऐसा, या तो माइनस माइनस मिलके ये क्या हो जाएगा? -3 + 1 दैट इज -2। ये समझ में आया रोहित? हाँ सर। उसी तरीके से जो फोर्थ टर्म है ना, -5 -(-3), तो ये क्या हो जाएगा? दैट इज -5 + 3 दैट इज -2। तो एवरी टाइम वी आर गेटिंग द सेम आंसर, राइट आरोही? यस, नो? हाँ तो सर। अगर सेम आंसर आता तो क्या होता? अगर डिफरेंस सेम आता तो इट इज इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, राइट आरोही? हाँ सर, मैंने दूसरे वाले में ब्रैकेट नहीं लगाया था, इसलिए मुझे अलग आंसर। हाँ, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ ना, थोड़ा सा ध्यान देना है, राइट, क्योंकि जनरली बच्चे लोग को ना नेगेटिव नंबर में कंफ्यूजन आते हैं, तो यूज ब्रैकेट एज मच एज पॉसिबल, ठीक है। तो एवरी टाइम यू आर गेटिंग द सेम आंसर एज -2, इट मींस दैट द गिवन सीरीज इज अर्थमेटिक सीरीज, राइट। और अगर ये अर्थमेटिक सीरीज है तो नेक्स्ट 2 टर्म्स लिखना है। बताओ नेक्स्ट 2 टर्म्स क्या आएगा? -7 -9 वेरी गुड। किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? नो सर। वेरी गुड, अच्छा कर रहे हो सब लोग, वेरी गुड। ये वाला क्वेश्चन करो, मैं जिससे पूछूंगा वही आंसर देगा। फर्स्ट एवरीवन सर कंप्लीट आंसर इट। मिल गया सर। हाँ, तो रखे रहो आराम से, रिलैक्स। अब इस स्पीड से चलेंगे तो 15 दिन में, मैं सोच रहा हूँ 15 चैप्टर है, 15 दिन में क्लास खत्म। अच्छे से करो, घबराना नहीं है, सब कुछ होगा, अच्छे से होगा, बहुत अच्छे से होगा। Within 2 months, I will make each one of you to write the board exam paper. आरोही, अब कार्तिक, आर यू डूइंग इट? यस सर। करो करो, स्वाति यस सर। करो, अच्छे से करो। You are given with a set of numbers. You have to check whether the given numbers forms an arithmetic progression or not. And I hope everyone is maintaining a new notebook. ऐसा नहीं कोई सीट में लिख ले, ऐसा नहीं करना है। Everyone has to maintain a proper notebook, right? यस सर। All right. यस सर। स्वाति कहाँ चली गई? सर हम लोग शायद फर्स्ट चैप्टर से शुरू नहीं किया। नहीं, फर्स्ट चैप्टर से नहीं करना है, मतलब बता दूंगा ऑर्डर, किस ऑर्डर में क्या करना है ना, वो मतलब ओके सर। दैट इज नथिंग टू वरी। कितना दिन लगेगा? 15-20 में तो पूरा बुक ही खत्म हो जाएगा। आज करो या कल करो, करना तो है ना। यस सर। स्वाति कहाँ चली गई? इज इट डन कार्तिक? आरोही? यस सर। आरोही बताओ, इट इज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और नॉट? सर मैंने सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म का सम है 4, उसके बाद थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म का भी 4 है, तो है। नहीं है ना, नहीं है ना, ये नहीं है ना आरोही। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, जो तुम्हारा दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म इज -2, सेकेंड टर्म इज 2, थर्ड टर्म इज -2, फोर्थ टर्म इज 2,
फिफ्थ टर्म इज -2 एंड सो ऑन। तो अगर यहाँ पे हम सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते तो सेकेंड टर्म इज 2 माइनस फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म -2 है, तो ये क्या हो जाएगा ना, ये 2 माइनस माइनस मिलके ये +2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, राइट। उसी तरीके से अगर थर्ड टर्म करेंगे माइनस सेकेंड टर्म करेंगे तो -2 और -2 कितना हो जाता है, -4 हो जाता है, राइट। तो ये -4 हो जाएगा यहाँ पे, राइट। तो ये -4 और 4 तो सेम नहीं है, राइट। दिस इज एक्चुअली 4 एंड दिस इज -4, राइट आरोही। हाँ सर। तो दोनों तो सेम नहीं हुए ना, नहीं हुआ। तो अगर सेम नहीं हुए तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन खत्म, आगे चेक करने का जरूरत ही नहीं है। दिस इज नॉट एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, राइट। यस सर। गॉट इट। तो अगर Yes. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है तो नो नीड टू राइट द नेक्स्ट टू टर्म्स, राइट। दे आर टेलिंग नो, इफ दे फॉर्म एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देन राइट द नेक्स्ट टू टर्म्स। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ही नहीं तो नेक्स्ट टू टर्म्स लिखने की जरूरत नहीं है, राइट। Okay. ऑल sir. राइट, ये वाला क्वेश्चन करो, अच्छे से करो, आराम से करो। सर आंसर मिल गया सर। अच्छी बात है, रखो रखो रखो, अभी 15 दिन वेट करो, 15 दिन के बाद मिलते हैं ना। स्वाति हो गया, स्वाति। डन सर। Yes sir. वेरी गुड। आरोही, कार्तिक, डन सर। आराम से करो, शर्माना नहीं है, घबराना नहीं है, सब कुछ होगा। बस 15 दिन मेरे साथ बैठना है, बस, ज्यादा नहीं। नहीं है। यार रोही, ये है क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? नहीं है सर। नहीं है, पक्का? नहीं है। लॉक लॉक कर दें? हाँ सर। हाँ, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। वेरी गुड। कार्तिक, तुम्हें क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या? नो सर। नहीं है ना। अक्षत, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या? नो सर। नहीं है ना। ऑल राइट, दिस इज नॉट एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्यों नहीं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? क्योंकि इसका Sir, the फर्स्ट common टर्म इज differences. 1, सेम नहीं आ रहा है ना, कॉमन डिफरेंस। यस, वेरी गुड। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहे हैं, इसीलिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होंगे। अगर सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते हैं तो 1 - 1 इज 0, फिर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करते हैं, दैट इज ऑल्सो 0, बट व्हेन यू डू फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, दैट इज 1. So you can see that every time difference is not same and hence they are not in arithmetic progression. Simple, right Karthik? Yes sir. Very good. चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं ना, कि write the first 4 terms of the AP when the first term A is given and the common difference. तो मैंने अभी क्या बोला था ना, कि जो common difference अगर दिया हुआ है और first term दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे हम लोग को देखते हैं, मान लेते हैं ये वाला जो सीक्वेंस है 3, 5, 7, 9, तो इसमें फर्स्ट, रिलैक्स रिलैक्स, कंप्लीट कर लेने दो, बाकी लोग को जो नहीं आते हैं ना वो। सर डन। हाँ हाँ, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, एक बार सांस ले लो तब तक थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा फर्स्ट टर्म दिया रहता है ना, जो फर्स्ट टर्म तुम्हारा दिया रहता है, उसमें अगर कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे, जैसे ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस क्या आया था, 2 आया था ना, तो अगर इसमें 2 ऐड करते हैं ना तो 5, ये मेरे को सेकेंड टर्म मिल जाता है, राइट। और सेकेंड टर्म में फिर से कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे तो मेरे को थर्ड टर्म मिल जाता है। थर्ड टर्म में फिर कॉमन डिफरेंस को ऐड करते हैं तो क्या होता है, ये फोर्थ टर्म मिल जाता है, एंड सो ऑन। ये समझ में आया? हमेशा याद रखना, जो भी तुम्हारा मान लो फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, उसमें अगर हम कॉमन डिफरेंस को ऐड करते हैं तो सेकेंड टर्म का वैल्यू मिल जाएगा, राइट। सेकेंड टर्म दिया हुआ है, अगर उसमें हम कॉमन डिफरेंस को ऐड करते हैं तो थर्ड टर्म का वैल्यू मिल जाएगा। थर्ड टर्म का वैल्यू मिल गया, उसके बाद कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे तो मेरे को फोर्थ टर्म का वैल्यू मिल जाएगा, एंड सो ऑन। ये समझ में आया? तो ये जो क्वेश्चंस बोल रहे हैं ना यहाँ पे, कि राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए, हम लोग जानते हैं ना, जनरली हम लोग फर्स्ट टर्म कैसे डिनोट करते हैं, स्मॉल ए से। तो स्मॉल ए अगर मेरे को 10 दिया हुआ है, राइट, और कॉमन डिफरेंस भी 10 दिया हुआ है, राइट, सो इट इज वेरी सिंपल टू फाइंड द सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा? 20. वेरी गुड। थर्ड टर्म क्या हो जाएगा? 30. वेरी गुड। फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा? 40. चलो अच्छी बात है, वेरी गुड। तो ये तो समझ में आ गया। कोई दुख दर्द यहाँ तक? नो सर। नहीं है ना? गुड। ये वाला क्वेश्चन करो सब लोग, और जिसे मैं पूछूंगा वही बताएगा मेरे को सिर्फ, ठीक है।
राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी। आंसर मिल गया सर। अच्छी सर हो बात है, गया। अच्छी बात है, डन सर। अच्छी बात है। आरोही को भी करने दो, तुम लोग छोड़ दे रहे हो आरोही, क्यों? करो ओके, आरोही, सर। आराम से करो। हो गया ना? बताओ क्या आएगा 4 टर्म्स? -2 -2 -2 -2, सब -2 ही आएगा। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि कॉमन डिफरेंस 0 है तो सेम ही रहेगा ना टर्म, अगर कोई वेरी डिफरेंस। गुड, क्योंकि अगर -2 में 0 ऐड करेंगे तो -2 ही आएगा, फिर -2 में 0 ऐड करेंगे तो -2 ही रहेगा। राइट आरोही, है ना? कार्तिक, ऐसा होता है क्या? 0 ऐड करने पे वही नंबर हो जाते हैं, रह जाते हैं क्या? हाँ सर। ऐसा है क्या? अच्छी अच्छी बात है, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे तुम्हारे फर्स्ट टर्म दिए हुए हैं 4 एंड कॉमन डिफरेंस दिए हुए -3। निकालो फर्स्ट 4 टर्म्स। जिससे सर, मैं done. पूछूंगा सर हो गया। सर हो गया हाँ, सर। कर लो कर लो कर लो, जिससे मैं पूछूंगा हो भी गया। आंसर वही। चलो तो आज ही, लगता है आज ही लिख लोगे सब लोग बोर्ड एग्जाम। करो करो, अच्छे से करो, आराम से करो, सर। समझ समझ के करो। सर हो गया। वेरी गुड कार्तिक। सर डन। डन, वेरी गुड। बोलो कार्तिक, क्या आया था आंसर तुम्हारा फर्स्ट 4 टर्म्स? Sir, first 4 terms I got a 4, then Okay. 1, -2, -5, and -8. 5 टर्म्स तुमको निकाल दिया, 4 ही टर्म्स बोले थे। तो इट इज नथिंग बट 4 -3, 1 1 -3 -2 -2 -3 is -5 -3 -5 -3 is -8 is the correct answer. But they were expecting only first 4 terms. Did you get the same answer, Aman? यस सर। Akshar, Yes, sir. Arohi got the same answer. हाँ सर। Are you able to understand? Now I'm not going very high speed, very slow, slowest teacher in the world, right? Try to do this question, Arohi, everyone. सर आ गया सर आंसर। अच्छी बात है, बाकी लोग भी करने दो अच्छे से। प्लीज टेक केयर ऑफ एडिशन सबट्रैक्शंस बिकॉज फ्रैक्शंस आर आल्सो इन्वॉल्व्ड, सो मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स फाइंड डिफिकल्टी इन फ्रैक्शंस। अगर डाउट होगा तो पूछना, सर डोंट। इसमें बोलो इसमें बोलो 0.5 अश्वत। नहीं ऐड कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, लेकिन फ्रैक्शन में ही करो ना। अगर फ्रैक्शन जनरली, अगर क्वेश्चन फ्रैक्शन में, तो ट्राई टू गिव द आंसर इन फ्रैक्शन। इफ द क्वेश्चन इज इन डेसिमल, ट्राई टू गिव द आंसर इन डेसिमल। इज दैट ऑल राइट? सर हो गया। यस अच्छी बात है। बोलो आरोही, क्या है आंसर? -1 -1/2 0 माइनस हाउ मच? हाँ -1 -1, ओके। -1/2 -1/2 0 0 1/2। 1/2 पक्का? हाँ सर। All right, so -1 -1/2 0 1/2. Did you get the same answer, Akshar? हाँ सर। Swati, यस सर। Karthik? यस सर। समझ में आ रहा है क्या होता है अर्थमेटिक में? सबसे आसान है, मतलब ये क्लास 2 का चैप्टर है एक्चुअली, लेकिन 10th में बाई मिस्टेक दे दिए हैं। कुछ करना ही नहीं, मतलब एडिशन सबट्रैक्शन करना है, दैट्स इट, राइट? ये समझ में आ रहा है ना कार्तिक? जो भी अर्थमेटिक प्रोसेस में अगर फर्स्ट टर्म तुम्हें दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, कुछ करना ही नहीं, बस फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करो, सेकंड टर्म आ जाएगा। सेकंड टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करो, थर्ड टर्म आ जाएगा। थर्ड टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करो, फोर्थ टर्म आ जाएगा, एंड सो ऑन, राइट? करेक्ट। एक और ले लेते, लास्ट क्वेश्चन। अच्छे से करो, डेसिमल इन्वॉल्व है, नेगेटिव नंबर भी इन्वॉल्व है, बी वेरी सर केयरफुल। आंसर आ गया। हाँ कर लो, अच्छी बात है। आंसर रेडी रखो, मैं पूछूंगा जिससे तो बता देना। अच्छे से करो। यूज ब्रैकेट as much as possible to avoid calculation mistake. Done, sir. Done, very good. Let's everyone finishes it, then we will go further.
स्वाति क्या कर रही है, बार बार आ रही है जा रही है, आ रही जा रही है, नेटवर्क इश्यूज में भी। ओके, Sir, done. Sir, वेरी गुड। ऑलराइट, तुम बताओ कार्तिक क्या है आंसर इस पर? Sir, minus 1.25, minus 1.5, minus 1.75, minus 2.00. पक्का? Yes, sir. ऑलराइट, तो इसको अगर ऐड करेंगे -1.25 तो -1.5 -1.75 -2.0, तुम्हारा सेम आया क्या आरोही और डिफरेंट आया? same आया। मैं अक्षत। यस सर सेम। वेरी गुड, दैट्स द करेक्ट आंसर। तो अब इसका मतलब एक चीज तो पता हो गया सभी लोग को ना, अगर कोई भी अगर एक सीक्वेंस दिया हुआ है, अगर पूछेगा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं, तो पता चल जाएगा ना क्या करना है। बस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करना है, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करना है, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म एंड सो ऑन करना है। हमेशा अगर आंसर सेम ही आएगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, राइट। दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग हम लोग क्या सीखे हैं कि अगर हमें फर्स्ट टर्म मालूम है और अगर कॉमन डिफरेंस मालूम है तो राइटिंग सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म इज नॉट ए डिफिकल्ट टास्क, वेरी सिंपल, जस्ट ऐड करते जाना है, राइट। जो भी प्रीवियस टर्म होता है उसमें अगर कॉमन डिफरेंस ऐड करते हैं तो हमेशा मेरे को नेक्स्ट टर्म मिल जाता है। इज दैट ऑल राइट? यस Yes, सर। sir. हाँ सर। एनी कंफ्यूजन टिल हियर? नो सर। No, sir. वेरी गुड। चलो एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट डिफरेंट तरह का क्वेश्चन। अब क्या बोल रहा है ना कि तुम्हें एपी ऑलरेडी दिया हुआ है, यू हैव टू राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। इट मींस यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ Sir, हो ए। गया. Sir, अच्छी done. बात है, वेरी गुड, सब लोग करो। Sir, done. अच्छी बात है। बताओ आरोही क्या है तुम्हारा फर्स्ट टर्म, वैल्यू ऑफ स्मॉल ए? फर्स्ट टर्म 3 है वेरी और गुड, डिफरेंस 2 है, -2। वेरी गुड। -2 है, 2 नहीं है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन 2 एंड -2, राइट। हाँ सर। अच्छे से करना है, ठीक है। और एक चीज और, मतलब ध्यान में रखना कि कॉमन डिफरेंस ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। इवन द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव, मे बी डेसिमल, मे बी फ्रैक्शंस, मे बी इरेशनल, कुछ भी हो सकते हैं। ओके, सो डोंट हेजिटेट कि ऐसा नहीं कॉमन डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव आएगा, नॉट नेसेसरी एट ऑल। ओके, सो लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन ऑन दिस। ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन एवरीवन, बी एक्स्ट्रा केयरफुल। ओके, Sir, done. ओके सर। अच्छी बात Sir, है। हो गया. क्या जल्दी क्यों आएंगे? बताओ ए का वैल्यू क्या आएगा कार्तिक? Sir, -5. वेरी गुड। आरोही तुम कॉमन डिफरेंस का वैल्यू बताओ। -6। अरे अरे तुमने गलत कर दिया ना। देखो, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते हैं ना, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म -1 है, माइनस फर्स्ट टर्म मीन्स -5 हो जाएगा, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, -1 माइनस माइनस +5, तो -1 + 5 इज +4। ये समझ में आया? हाँ सर। पक्का? पक्का सर। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना, ध्यान से, जहां नेगेटिव आता है ना सबको प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो यूज ब्रैकेट एज मच एज पॉसिबल, जितना यूज करो, कंजूसी नहीं करना, जितना ब्रैकेट यूज करना है कर लो, ठीक है, टू अवॉइड कैलकुलेशन मिस्टेक। ये समझ में आ गया पक्का रोहित? हाँ सर। अच्छी बात है। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन करो, इसमें फ्रैक्शंस इन्वॉल्व है, बी एक्स्ट्रा केयरफुल एवरीवन। राइट द फर्स्ट टर्म एज वेल एज द कॉमन डिफरेंस। सर मिल गया सर। अच्छी बात है, Sir, done. अच्छी बात है, सब लोग कर लो। हो गया सर. हो गया सर. ऑलराइट, बोलो अक्षत, फर्स्ट टर्म तुम्हारा क्या आया? -1/3. 1/3। व्हाट इज योर कॉमन डिफरेंस? 4/3। 4/3। सबका यही आया है, किसी को कोई डाउट है, किसी का डिफरेंट आंसर आया है? No, sir. नहीं सर। सर वेरी Same है गुड, sir. अच्छी बात है। चलो एक और क्वेश्चन ये वाला करो सब लोग, बी एक्स्ट्रा केयरफुल। सर हो गया सर। Sir, हो गया. Sir. अच्छी बात है। कार्तिक तुम बताओ फर्स्ट टर्म क्या है? Sir, first term 0.6. स्वाति कॉमन डिफरेंस बताओ। 1.1. वेरी गुड, एवरीवन गॉट द सेम आंसर। आरोही सेम आया है? हाँ सर।
कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। अच्छी बात है। ये वाला क्वेश्चन में ना विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, पहले ये चेक करना है कि एपी है कि नहीं। अगर इफ दे आर एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड Sir, they're राइट not 3 AP. मोर टर्म। ए भी नहीं है ऐसे ही क्यों नहीं है? क्योंकि ये Sir, मल्टीप्लाई हो क्योंकि same. अच्छा यही Sir- एग्जांपल मैंने दिया था, क्या लग रहा है? यही सेम एग्जांपल है गिवन, राइट? Sir, common difference is not constant. हाँ, सो यहाँ पे क्या करेंगे ना, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई वाला चीज नहीं चेक करना है, तुम्हें चेक करना है कि जो सेकेंड टर्म का वैल्यू Fixed है number is not माइनस added. फर्स्ट टर्म करेंगे तो क्या आया? 2 आया, राइट? उसी तरीके से थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करेंगे तो 4 आ गया। तो दोनों तो सेम नहीं आया ना, एंड दैट इज द रीजन दे आर नॉट इन एपी। ये समझ में आया? हाँ सर। वेरी गुड। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये वाला ट्राई करो। पहले 2 है, फिर 5/2 है, फिर 3 है, फिर 7/2 है, राइट? तो इसको देखो ये एपी में है कि नहीं। अगर एपी में है तो कॉमन डिफरेंस निकालो, उसके बाद 3 और टर्म लिखना है, ठीक है? Sir, है. यस सर। एपी में है हाँ sir. हाँ सर। 1/2 added है. हाँ Yes sir. अच्छा अच्छा, ये तो इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा रोहित? इसका फर्स्ट टर्म 2 है। हाँ, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? a इज इक्वल्स टू 2। कॉमन डिफरेंस क्या है रोहित? 1/2। पक्का? हाँ सर। वेरी गुड। एंड व्हाट आर द नेक्स्ट 3 टर्म्स हियर? 8/2, 9/2 और 5 या 10/2। अरे ऐसा मत बोलना, 8/2 एग्जाम में मत लिख के आ जाना। 8/2 को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देना, ठीक है? 4 लिख देना, और उसके बाद 9/2 को ठीक ऐसे रख सकते हो। 10/2 मत लिख देना एग्जाम में, 5 लिख देना, ठीक है? 5. यहाँ तक कोई डाउट है कार्तिक? No sir. तो हम लोग अभी तक क्या सीखे हैं ना कि कोई भी अगर सीक्वेंस दिया हुआ है और मेरे को चेक करना है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं, तो क्या करते हैं? सेकेंड टर्म माइनस Second term फर्स्ट minus टर्म। first. हाँ बोलो बोलो, कंप्लीट करो। Second term minus first term is equals to fourth term minus third term. हाँ मतलब जो भी है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म निकालेंगे, फिर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म निकालेंगे, फिर फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म निकालेंगे, एंड सो ऑन, जितना टर्म दिया रहेगा करेंगे। और हमेशा वैल्यू अगर सेम आएगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ गिवन सीरीज इज इन अर्थमेटिक सीक्वेंस और अर्थमेटिक सीरीज, है कि नहीं? और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट 2 चीज होते हैं, एक होते हैं फर्स्ट टर्म और एक होते हैं कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म तो एज इट इज दिया रहता है क्वेश्चन में, राइट? कॉमन डिफरेंस हम लोग कैसे निकालते हैं? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर लेते हैं, या थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म कर लेते हैं, या फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म कर लेते हैं। हमेशा तो वैल्यू सेम रहता है तो इससे निकाल लेते हैं। यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं सर। No sir. एक चीज और हम लोग क्या सीखे हैं कि अगर मान लो फर्स्ट टर्म दिया हुआ है और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ, तो हमसे अगर पूछता है कि सेकंड टर्म निकालो, तो क्या करते हैं? फर्स्ट टर्म में अगर कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देते हैं ना तो सेकंड टर्म मिल जाता है। सेकंड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर देते हैं ना तो थर्ड टर्म मिल जाता है। थर्ड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर देते हैं तो फोर्थ टर्म मिल जाता है। फोर्थ टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर देते हैं तो फिफ्थ टर्म मिल जाता है, राइट आरोही? हाँ सर। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं सर। अच्छी बात है। चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो सब लोग, जिससे मैं पूछूंगा वही आंसर देगा। ओके सर, आगे आंसर। सर हो गया। सब लोग कर लो। Okay sir. पक्का? कोई डाउट नहीं है? No sir. करो करो, अच्छे से करो। हो गया सर। अच्छी बात है। अब कार्तिक हो गया? Sir done. यस, वेरी गुड। सो यहाँ पे ये एपी में है क्या कार्तिक? Yes sir. आर यू श्योर? Yes sir. व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? Minus 1.2. वेरी गुड। व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस आरोही? -2।
पक्का? हाँ सर। अक्षत, व्हाट इज योर कॉमन डिफरेंस? I guess. Amay, what is your common difference? Sir, -2. All right, tell me the next three terms, Amay. Sir, -9.2, -11.2, -13.2. -9.2, -11.2, and then -13.2, right? Yes. Sir. Yes. Everybody got the same answer? हाँ सर। Yes, sir. All right, good. तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया? हाँ सर। Very Yes, good. sir. Let's take the next question. Try this one. जिससे मैं पूछूंगा वही आंसर देगा। Okay, sir. Sir, done. सब लोग कर लो, सब लोग कर लो। Okay, sir. हो गया स्वाति? Yes, sir. ये एपी में है क्या? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. बताओ फर्स्ट टर्म क्या है तो? -10. ऑल राइट। आरोही, कॉमन डिफरेंस क्या है? 4। पक्का? हाँ सर। अच्छी, इस बार ब्रैकेट लगता है यूज कर लिया आरोही। गुड, वेरी गुड आरोही। ये -6 फिर -10 करेंगे, राइट आरोही? हाँ तो ये सर। क्या हो जाएगा? -6 + 10, दैट इज नथिंग बट +4। ये -4 मत लिख देना, ये +4 है, राइट? ठीक है, नेक्स्ट थ्री टर्म्स बताओ आरोही, क्या आएगा? 6, 10, 14। वेरी गुड आरोही, गुड जॉब। तुम्हारा भी सेम आंसर आया कार्तिक? Yes, sir. ये क्वेश्चन समझ में आ गया अच्छे से? Yes, sir. गुड। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। हाँ, ये एक क्वेश्चन अच्छा है, धीरे धीरे करना, ठीक है? अगर जिसको नहीं आता है सबट्रैक्शन रूट इन्वॉल्व जहां पे होते तो डोंट हेजिटेट टू आस्क, आई विल एक्सप्लेन, ओके? Sir, done. Sir, हो गया। क्या बात है यार, तुम लोग तो एकदम टॉपर के टॉपर हो सब लोग, लग रहा है। करो करो, अच्छे से करो, लिख लिख के करो। इज इट डन अक्षत? हाँ सर। क्या ये एपी में है क्या? Yes, sir. हाँ सर। ऑल राइट, तो व्हाट इज द फर्स्ट टर्म अक्षत? 3. व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस? √2. All right. And what are the next three terms, Akshat? 3 + 4 √2. 3 + 4 √2. 3 + 5 √2. 3 + 6 √2. Yes, very good job. तो जहां पे रूट इन्वॉल्व होते हैं, you are comfortable subtractions and all, right? हाँ सर। All right. Have you understood, Arohi, this question, or you have a doubt? Shall I explain one more time? I understood, sir. You know how to do the subtraction? Yes. This root involving. Karthik, you are comfortable? Yes, sir. Very good. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छे से करो, आराम से करो, जिससे मैं पूछूंगा वही बताएगा। Sir, हो गया sir. सर हो गया। करो करो करो, अच्छे से करो, सब लोग करो। डन सर। पक्का? यस सर। यस सर। हो गया सर। अच्छी बात है यार, सब लोग फास्ट कर रहे हो। कार्तिक, कंप्लीटेड? तो ये कार्तिक, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है? नो सर। सच में नहीं है? नो सर। अच्छी बात है। फर्स्ट टर्म क्या होगा आरोही? 0.2। कॉमन डिफरेंस? 0.02। फर्स्ट सेकंड कॉमन डिफरेंस नहीं है, लेकिन नहीं सेकंड है। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ, कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस कब आएगा? जब वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में रहेगा तब तो आएगा ना, ये तो है ही नहीं, तो कॉमन डिफरेंस आएगा ही नहीं। तो अगर कोई पूछता है कि इसमें कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो बोलना नहीं होगा ना, क्योंकि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ही नहीं, तो कॉमन डिफरेंस नहीं आ सकते हैं, राइट?
Are you getting it? First term is 0.2, that is okay, but there is no common difference here, right? So this is not in AP. चलो ये वाला क्वेश्चन करो अच्छे से सब लोग. Sir, done. क्या बात है, गुड, वेरी गुड. Sir, Done, sir. sir, हो गया. अच्छी बात है. जहां पे भी नेगेटिव आता है, बी एक्स्ट्रा केयरफुल, यूज ब्रैकेट एज मच एज पॉसिबल. हो गया सर. पक्का? हाँ सर. All right, Karthik, is it arithmetic progression or not? Yes, sir. Yes, sir. All right, what is the first term, Karthik? 0. And what is the common difference? -4. All right. What are the next three terms, Arohi? -16, -20 और -24. Very good. अच्छी बात है. Good. All of you are doing amazing. Let's take the next question. ये वाला question करो. सर आगे सर आंसर. Sir, done. हाँ, कर लो, पेपर पे लिख लो, लिखोगे ना तो ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा. लिख लो. मतलब to be very frankly 10th is equivalent हो to गया सर. हो गया. स्वाति को ध्यान में बाद में आया, वो ये तो ऐसे ही है. अच्छे से करो. सर हो गया. अच्छी बात है. कार्तिक इज डूइंग. Sir, done. All right. So tell me, Swati, is it an arithmetic progression or not? Yes, sir. सच में है? Yes, sir. आरोही, तुम्हें क्या लगता है? Is it an arithmetic progression? है क्या? हाँ सर. हाँ. अरे वाह. तो अगर एपी में तो इसका फर्स्ट टर्म क्या आएगा? -1/2. ऑल राइट. और कॉमन डिफरेंस क्या आएगा आरोही? 0. वेरी गुड. यही मैं बताना चाहा था ना, मैंने ये सेंटेंस यूज किया था. ये कॉमन डिफरेंस तुम्हारा 0 भी हो सकते हैं. ओके, ऐसा नहीं कि हमेशा पॉजिटिव होंगे या सिर्फ नेगेटिव होंगे. इट कैन बी 0 एज वेल. ठीक है. नेक्स्ट थ्री टर्म्स क्या आएगा कार्तिक? Sir, -1/2, -1/2, -1/2. सेम ही रहेंगे तीनों. हाँ सर. हाँ, नेक्स्ट थ्री टर्म्स भी सेम, क्योंकि -1/2 में 0 ऐड करोगे तो -1/2 ही रहेंगे. फिर 0 उसमें ऐड करोगे तो -1/2 ही रहेंगे. फिर 0 ऐड करोगे तो -1/2 ही रहेंगे. राइट. तो आई थिंक नाउ यू पीपल आर कंफर्टेबल टू चेक वेदर ये जो गिवन सीरीज है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं. इसमें कोई डाउट है अभी तक? No, नहीं sir. सर. वेरी गुड. ये वाला करो. आगे सर आंसर. आ गया सर. हो गया. Yes, Yes, sir. sir. अच्छा, अच्छी बात है. पेपर पे लिख के कर लो सब लोग. हो गया सर. तो ये है क्या आरोही, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या नहीं है? है सर. वेरी गुड. क्या है तुम्हारा फर्स्ट टर्म? फर्स्ट टर्म 1 है. कॉमन डिफरेंस? और कॉमन डिफरेंस क्या आएगा? एक सेकंड. अरे एक सेकंड आता है. 2 नहीं, 2 है क्या? पहले वाले में 2 है. पहले वाले दूसरे वाले क्या होता है? ये तो हमेशा सेम ही आना चाहिए, तभी तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा ना. मैं क्या बताया था कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करना है. तो इसमें अगर सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे, राइट, तो सेकेंड टर्म तुम्हारा 3 है माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज 2, राइट. उसके बाद क्या करना है? थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म. थर्ड टर्म क्या है? 9 है और सेकेंड टर्म 3 है, तो ये क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा. तो 6. दोनों सेम है ही नहीं है, तो इसका मतलब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है. राइट. हाँ नहीं है. अरे यार वही क्या हो गया? ये तो इतना सिंपल है ना. हमेशा ध्यान रखना है कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म का जो भी वैल्यू आया ना, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म में सेम वैल्यू आना चाहिए, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म में सेम वैल्यू आना चाहिए, तभी तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा. अदरवाइज ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा. समझ में आया रोही? हाँ सर. तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है. किसी को इस क्वेश्चन में डाउट है? और अच्छे से करो. ये वाला क्वेश्चन करो, अच्छे से करो सब लोग. सर हो गया सर.
अच्छी बात है, सब लोग कर लो। हो गया सर। आरोही, कार्तिक, सब लोग कर लो अच्छे से। वेरी गुड। यस सर। ये कार्तिक की अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या? यस सर। पक्का? हाँ सर। ऑलराइट, फर्स्ट टर्म क्या आएगा कार्तिक? यस सर। सॉरी, ए। कॉमन डिफरेंस क्या आएगा A. आरोही? ऑलराइट, नेक्स्ट 3 टर्म क्या आएगा स्वाति? 5, 6, 7, 8। वेरी गुड। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन करो, अच्छे से करो, ये मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा, आंसर सब आ लोग गया। नहीं बोलना है, ठीक है? आंसर आ गया। हाँ, जिससे मैं हाँ, पूछूंगा ओके वही सर। पहले कर लो सब लोग। अच्छे से करो, समझ समझ के करो, ये मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा। अच्छी बात है। हो गया सर। हो गया सर। क्या आरोही ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है? नहीं सर, नहीं है? नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए को हर टर्म में। तुम्हें वो मल्टीप्लाई वाला कॉन्सेप्ट दिमाग में लाना ही नहीं, तुम्हें करना सबट्रैक्शन। जो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते हैं, तो यहाँ पे जो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे दैट इज ए स्क्वायर माइनस ए। अगर ए दोनों में कॉमन लेते हैं तो क्या आ जाएगा? ए माइनस 1। तुम्हें कॉमन लेने वाला पता है आरोही? हाँ सर। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। और उसी तरीके से थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करेंगे ना। थर्ड टर्म इज ए क्यूब, सेकेंड टर्म इज ए स्क्वायर। तो दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा? ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। तो फिर ले लेते हैं ए माइनस 1, राइट? तो अगर ध्यान से देखोगे ना, तो दोनों में ये जो a टाइम्स ए माइनस 1 है, यहाँ ए स्क्वायर टाइम्स ए माइनस 1 है, तो दोनों सेम नहीं है। तो इसका मतलब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, राइट? हाँ सर। अच्छा, पता है तुम्हें इस तरह का सीक्वेंस को एक स्पेशल नेम दिया गया है, कुछ मालूम है क्या? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, कभी नाम नहीं सुना? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सर। कब पढ़े हाँ करते सर। हैं? I don't know sir. I think 2 years ago. ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आता है तो 11th हम लोग पढ़ेंगे, अभी सिर्फ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे। इतना पता है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, ये पता है ना कार्तिक? हाँ सर। आरोही, कोई डाउट है इसमें? नहीं सर। अच्छी बात है। चलो एक और क्वेश्चन करो, ये भी अच्छे क्वेश्चन है, आराम से। है सर ये। हम्म? सर आंसर आ गया। हाँ कर लो, और बाकी लोग को करने दो, अच्छे से करो, ठीक है? सर डन। हाँ, बाकी लोग भी कर लेते हैं। इस बार बैच में सब अच्छे अच्छे बच्चे हैं, मतलब मेरे को लग रहा है 15-20 दिन में ये पूरा बुक खत्म हो जाएगा। मार्च में तुम लोग भी बोर्ड एग्जाम लिख लेना 10th वाला। हो गया सर। हाँ, सर मुझे इसमें डाउट है सर। डाउट है? कोई बात नहीं, मैं एक्सप्लेन करूंगा। लेट एवरीवन फिनिशेस। हो गया कार्तिक? सर डन। ओके गुड। अमय, यस सर डन। अक्षर, यस सर। स्वाति, यस सर। ऑलराइट। तो पहले ये बताओ, कार्तिक की अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है? नो सर। नहीं है? नो। सर है बताओ। अच्छा, सर है बताओ। अक्षर की अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं? है सर। सर है बताओ। पक्का? सर है सर। रूट 2 है सर। रूट 2 ऐड हो रहा है। हाँ, ये एक्चुअली क्या है सर ना। रूट हाँ, सिंपलीफाई करना है सर। सुन लो सुन लो सुन लो हाँ सर। सुन लो सुन लो सुन लो सब लोग। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, दिखने में नहीं लग रहा है, लेकिन इसको क्या करते हैं ना, जैसे मैंने क्या बोला ना, किसी भी नंबर को ना हमेशा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना चाहिए। तो उसी तरह क्या होता है ना, आरोही प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन द स्क्रीन। So you have a doubt in this question whether it is arithmetic progression or not, right? So first term is given to you as root 2, second term is given to you as root 8, third term is given to you as root of 18, and fourth term is given to you as root 32, right? तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, whatever the root is there, right?
If possible, we will try to simplify as much as possible. So root 2 cannot be simplified further. So let us keep as it is. But do you know, Arohi, that root 8 can be simplified and can be written as 2 times root 2? Do you have any idea about this? हाँ सर Are you sure? यहाँ हाँ पे सर क्या होता है ना, जैसे रूट 8 है, राइट? तो हाउ वी सिंप्लीफाई, वी राइट रूट सिंबल एज इट इज and 8 we prime factorize it. Prime factorize means 2 times 2 times 2, right? And whichever number is in pairs, right? For example, this 2 and this 2 is in pairs, so whatever the number is in pairs, that comes outside the square root symbol, and whatever remains alone inside the square root symbol, that remains as it is. And that is the reason square root of 8 can be written as 2 root 2. Is that all right? हाँ सर वेरी गुड. उसी तरीके से जो मेरा रूट 18 है, राइट? तो रूट 18 को हम लोग सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइज करेंगे. प्राइम फैक्टराइज का मतलब क्या होता है ना, जो भी नंबर दिया हुआ है, दैट नंबर यू शुड राइट एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स ओनली. प्राइम नंबर्स पता है ना रोहित? हाँ सर वेरी गुड. तो अगर इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स लिखेंगे ना, तो 2 टाइम्स 9, 9 को हम लोग फिर से लिख सकते हैं 3 टाइम्स 3. तो अभी मैंने क्या बताया था कि जो भी नंबर पेयर में होते हैं ना, उसको बाहर ले लेते हैं. तो ये 3 और 3 पेयर्स में है ना, तो ये 3 बाहर आ जाएंगे. रूट 2 अकेले है, वो इनसाइड द स्क्वायर रूट सिंबल ही रह जाएंगे. तो इसका मतलब क्या हो गया, स्क्वायर रूट 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2. ये समझ में आया रोहित? हाँ सर वेरी गुड. उसी तरीके से जो रूट 32 है मेरा, राइट, उसको भी हम लोग सबसे जितना सिंप्लीफाई हो सकता है सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखने का कोशिश करेंगे. तो सबसे पहले क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइज करेंगे 32 को. तो 2 टाइम्स 16, 16 को क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स 8, 8 को क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स 4, 4 को क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स 2, राइट? अब फिर वही प्रोसेस फॉलो करना है कि जो भी नंबर पेयर में है, जैसे ये वाला 2 और ये वाला 2 पेयर्स में है, तो ये बाहर आ जाएगा, राइट? उसी तरीके से ये वाला 2 और ये वाला 2 पेयर्स में, तो ये बाहर आ जाएगा. एक 2 है ना जो अकेले बच जाता है, वो स्क्वायर रूट के अंदर में ही रहेगा, राइट? तो 2 टाइम्स 2 इज 4 टाइम्स रूट 2. ये समझ में आया रोहित? हाँ सर पक्का? कार्तिक कोई डाउट है इसमें, कैसे सिंप्लीफाई करते हैं स्क्वायर रूट को? वेरी गुड. तो ये क्या हो गया तुम्हारा, 4 रूट 2. और ये वाला क्वेश्चन आई थिंक जस्ट कुछ देर पहले हम लोग किए थे ना, रूट 2, 2 टाइम्स रूट 2, 3 टाइम्स रूट 2. तो ये क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, राइट? क्यों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है? क्योंकि जब हम सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म करेंगे ना, दैट इज 2 रूट 2 माइनस रूट 2. तो क्या आएगा, 2 रूट 2 में से एक रूट चला गया, तो सिर्फ रूट 2 ही बचेगा, राइट? उसी तरीके से 3 टाइम्स रूट 2 माइनस 2 टाइम्स रूट 2 करेंगे, तो क्या बचेगा, सिर्फ 3 रूट 2 में चला जाएगा, तो एक ही बचेगा, राइट? दैट इज रूट 2. उसी तरीके से 4 रूट 2 माइनस 3 रूट 2 करेंगे, तो क्या बचेगा, रूट 2 सिर्फ 2 ही बचेगा. तो every time we are getting the same difference, right? What does it mean? It means that the given progression is in arithmetic progression, है कि नहीं? Yes, हाँ sir. सर अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो हम लोग फर्स्ट टर्म क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म and even the common difference is 2. Just now we have found everything, right? Just now we have found the common difference is root 2. यहाँ तक कोई डाउट है आरोही? नहीं सर वेरी गुड. अब तुम्हारा नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालना है. तो फर्स्ट टर्म है 2, सेकंड टर्म है 2 रूट 2, थर्ड टर्म है 3 रूट 2, फोर्थ टर्म है 4 रूट 2, तो फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगा, 5 रूट 2, सिक्स्थ टर्म क्या हो जाएगा, 6 रूट 2, सेवेंथ टर्म क्या हो जाएगा, 7 रूट 2. ये समझ में आया? हाँ सर यस सर. लेकिन 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 एग्जाम में क्या करना ना, रूट 50 में नहीं लिखना है, इसको रूट 50 में कर देना. हाँ, ये रूट 50, रूट 50 रूट 98 72 72. वेरी गुड. नेक्स्ट रूट 98 98. वेरी गुड.
ये समझ में आ गया सबको? हाँ Yes, सर। sir. ये 1 मार्क्स में आ सकता है ये एग्जाम में, ठीक है। एक बार फिर से देख लो इसको, अगर कुछ नोट करना है तो कर लो आरोही। शर्माना नहीं है, ठीक है, शर्माना नहीं है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में फिर क्या करोगे अगर यहाँ शर्मा जाओगे तो। ये रूट कैसे सिंप्लीफाई करते हैं पता चला? हाँ सर। और ये जो जो नेक्स्ट 3 टर्म्स आएगा 5√2, 6√2, 7√2, ये सब पता चला? हाँ। इसके बाद मैंने √5√2 को √50 मैंने कैसे लिखा ये नहीं पता चला होगा ना? नहीं सर, जो 5√2 है उसमें उसका मतलब है कि 2 into 2 के 5 पेयर्स है, तो उसको मल्टीप्लाई करना है √2 के अंदर। नहीं, जो बाहर में है ना उसको अंदर ले जाते हैं तो 2 बार लेना पड़ता है। जैसे कि अंदर में हाँ। कोई चीज रहता है ना, उसको बाहर लाते हैं तो क्या होता है, जो 2 होगा तो 1 बाहर आता है। जो अगर अकेले बाहर है तो 2 टाइम अंदर जाएगा तो 2 बार जाएगा, राइट। तो 5 हाँ। 2 टाइम जाएगा, तो 2 times 5 times 5, so 2 times 5 is 10 times 5 is 50, is that all right? हाँ उसी सर। तरह से 6√2 है ना, तो अगर 6 को अंदर ले जाते हैं रूट के इन साइड तो क्या हो जाएगा, 36 times 6, राइट। सो 2 times 6 is 12, 12 times 6 is 72। ये समझ में आया रोहित? हाँ सर। पक्का? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें? ठीक है, एक और क्वेश्चन लो, अच्छे से करो, आराम से करो, समझ समझ के करो। करो या अच्छी बात है, सब लोग करो, अरे अच्छे से करो। जब भी हमेशा ध्यान रखना रूट रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं ना, तो फर्स्ट यू सिंप्लीफाई द रूट एज मच एज पॉसिबल एंड देन यू ओनली यू डिसाइड व्हाटएवर यू वांट टू डू विद दैट। डन सर। सब लोग करो करो, आराम से करो। हो गया सर। अच्छी बात है, वेरी गुड। तो ये बताओ है कि नहीं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में? नहीं। नो सर। नहीं है सर। नहीं है? नहीं है। सब लोग को नहीं है, मतलब किसी को तो आया होगा ना अरिथमेटिक में, किसी को नहीं आया? नो सर। नहीं नहीं सर। सर। ऐसा है क्या? अच्छी बात है, देख लेते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ही नहीं। तो सबसे पहले √3 को तो सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, दैट विल रिमेन एज इट इज। √6 को भी √6 को सिंप्लीफाई भी नहीं कर सकते। दैट विल रिमेन एज इट इज। √9 को सिंप्लीफाई 3 करेंगे तो 3 आ जाएगा। √12 को सिंप्लीफाई करेंगे तो आरोही कितना आएगा 2 बताओ? 3। क्या आएगा? 2√3। 2√3। पक्का? हाँ। अच्छी बात है, 2√3, राइट। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो क्या लिखेंगे, √6 माइनस √3, कुछ नहीं कर सकते हैं, दैट विल रिमेन एज इट इज, राइट। और इसको फिर 3 माइनस √6 करेंगे तो दोनों सेम नहीं है, राइट, एंड हेंस दिस इज नॉट इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये समझ में आया? दोनों हाँ, सर। सेम नहीं है, दैट इज द रीजन इट इज नॉट इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये वाला ट्राई करो, आराम से करो, मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा। अच्छे से करो, 2 क्वेश्चन बचे हैं, अच्छे अच्छे 2 क्वेश्चन हैं, ठीक है? सर हो गया। हाँ हो ठीक है गया। ठीक है, बाकी कर लो। सर डन। हाँ बाकी लोग कर लो, सब लोग कर लो, सब लोग। हो गया सर। हाँ हाँ करो करो, अरे अरे सब लोग रिलैक्स। हो गया सर। सब लोग का हो गया? कार्तिक ये बताओ एपी में है कि नहीं है? सर इट इज इन नॉट इन एपी सर। नॉट इन एपी, ऑल राइट। आरोही इज इट इन एपी? नो सर। स्वाति इज इट इन एपी? नो सर। अमय इज इट इन एपी? नो सर। किसी का नहीं आया, किसी का तो आना चाहिए। अक्षर तुम्हारा? नहीं है सर ये भी। ये नहीं है? अच्छा ठीक है, चेक कर लेते हैं है कि नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1 स्क्वायर को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 ही रह जाएगा, राइट। फिर 3 स्क्वायर को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा।
फिर 5 स्क्वायर को सिंप्लीफाई करेंगे तो 25 आ जाएगा, राइट। फिर 7 स्क्वायर को सिंप्लीफाई करेंगे तो 49 आ जाएगा, राइट। तो इसका मतलब जो तुम्हारा सीरीज मिलेगा, सीक्वेंस मिलेगा, क्या है, 1, 9, 25, 49 एंड 1। अब मुझे चेक करना है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं। तो क्या करते हैं, सबसे पहले सेकेंड टर्म 8 टर्म दैट इज 8, राइट। और फिर क्या करते हैं, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म दैट इज नथिंग बट 16। तो दोनों तो सेम नहीं आए ना, तो इसका मतलब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। नहीं है। All right, very good. Let's take one more question. This question you do it properly, everyone. सर है, सर आंसर आ गया। हाँ, तो बाकी लोग कर लो अच्छे से, लिख लिख के करो। किसी को भूख नहीं लगा है ना अभी तक? अच्छी बात है, करो। सर हो गया। हाँ, सर, सब लोग का होने डन दो, सब सर। लोग का होने दो। हो गया सर। सब लोग का हो गया, वेरी गुड। कार्तिक हो गया, हाँ सर। अच्छी बात है। तो ये बताओ एपी में है या नहीं है कार्तिक? नो है सर। यस सर। अरे जिससे पूछ रहा हूँ उसे तो पहले कंप्लीट करने दो ना। यस सर, नो सर, यस सर, नो सर। कॉमन कार्तिक के डिफरेंस नो है, 24 राइट? सर। नहीं, ये Common अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, राइट? नो सर, इट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सर। कॉमन जस्ट डिफरेंस इट इज 24 है। नॉट। ओके, आरोही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है? है सर। पक्का? हाँ। अच्छा, इसका फर्स्ट टर्म क्या आएगा? 1, कॉमन डिफरेंस 24। पक्का? हाँ। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या आएगा बताओ आरोही? 97 11 97 1 2 1 1 4 5 115 97, उसके बाद क्या आएगा? 121 11 4 अरे अरे अरे, दोनों का मतलब खिचड़ी हो जाए थोड़ा सा, एक ही चीज करते हैं पहले। आरोही बताओ, दो नेक्स्ट 2 टर्म्स क्या है? 97 देन 121 140। सर एग्जाम में उसे 11 स्क्वायर लिखना है या 121? 1 स्लो स्लो, एक मिनट। 121 बाद क्या आरोही? 145। हाँ, ये दैट इज आल्सो गुड क्वेश्चन। स्वाति हैज आस्क्ड अ वेरी गुड क्वेश्चन जस्ट नाउ। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में ना स्क्वायर दिए हैं, कुछ में नंबर्स डायरेक्टली दिए हैं। तो वेयर एवर पॉसिबल यू कैन राइट इन स्क्वायर। सो 97 you cannot write in the square form, so let us keep as it is. But 121 can be written as 11 square, so you must write it as 11 square. 11 square. Is that all right? Yes sir. Have you understood, everyone? Yes sir. यस सर। All right, very good. चलो एक और अच्छा, ये क्वेश्चन को बाद में लेते हैं, पहले चीज सीख करते हैं हम लोग, ठीक है? एक और कॉन्सेप्ट पहले सीख, जब कर ही लेते हैं इसको भी कर लेते हैं। अच्छे चलो, इसको बाद में लेंगे, पहले सिंपल वाला चीज सीख लेते हैं। तो अभी तक हम लोग क्या सीखे हैं ना, कि कोई भी अगर दिया हुआ है प्रोग्रेशन, राइट, और तुम्हें चेक करना है कि वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं, तो क्या करते थे हम लोग? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म Second term करते थे, minus- थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करते हैं, फिर फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म एंड सो ऑन टिल लास्ट टर्म माइनस लास्ट बट वन टर्म करते हैं, राइट? अगर हमेशा सेम आता है देन वी कैन से दैट इट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अदरवाइज इट इज नॉट। इज दैट ऑल राइट? हाँ सर। एक चीज और हम लोग क्या सीखे हैं ना, कि अगर अर्थमेटिक, पहले से बोल रहा है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और जिसका फर्स्ट टर्म तुम्हें दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, राइट? तो अगर फर्स्ट टर्म दिया हुआ है तो सेकंड टर्म निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे? फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस देते थे ना। अगर मेरे को यहाँ पे जो अगर फर्स्ट टर्म ए दिया हुआ है, एंड लेट्स राइट इट इन डिटेल, ओके, लेट्स राइट इट। अगर मेरे को फर्स्ट टर्म दिया हुआ है स्मॉल ए, राइट, और उसके बाद जो कॉमन डिफरेंस है ना वो भी दिया हुआ है स्मॉल डी,
अगर ये दिया हुआ है, अगर हमसे पूछता है कि फर्स्ट टर्म का वैल्यू क्या आएगा तो ये ही आएगा, राइट। और अगर सेकेंड टर्म का वैल्यू पूछेगा तो क्या आएगा, वही बताओ। A A plus plus B. A plus 2. A+2, A+2 कहाँ से आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस डी है ना, तो A+D ही आएगा, राइट। Okay. अगर फर्स्ट टर्म ए है, हमेशा ध्यान रखना कि अगर कोई भी टर्म का वैल्यू दिया हुआ है, जैसे फर्स्ट टर्म ए है, तो सेकंड टर्म का वैल्यू निकालने के क्या करते हैं, जो भी फर्स्ट टर्म है उसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड करते हैं, राइट आरोही। हाँ तो इसमें क्या हो जाएगा, A+D, राइट। आर यू गेटिंग इट। फिर से अगर हाँ। वो नेक्स्ट वाला टर्म चाहिए तो क्या करेंगे, फिर से A+D में एक और डी कर देंगे, तो AD+D क्या हो जाएगा, 2D हो जाएगा आरोही। ये समझ में आया। हाँ सर। अगर फिर से मेरे को नेक्स्ट वाला टर्म चाहिए तो क्या हो जाएगा, A+2D तो है ही, 2D में एक और कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3D हो जाएगा, राइट। हाँ सर। तो एक चीज ध्यान से यहाँ पे देखोगे ना रोहित, जो फर्स्ट टर्म है उसमें A सिर्फ है, सेकेंड टर्म में A+D है, थर्ड टर्म में ना A+2D है, मतलब थर्ड टर्म में 2 टाइम्स D आ रहा है। A तो हमेशा सेम ही रह रहा है, जो D के साथ है ना, थर्ड में 2 आएगा, फोर्थ टर्म में 3 आ रहा है, राइट। ये समझ में आ रहा है। हाँ सर। अगर मेरे को 10th टर्म लिखना होगा, 10th टर्म हम क्या कर सकते हैं, A+9 टाइम्स D लिख सकते हैं। 9 डाउट है आरोही। नहीं सर। अगर मेरे पास अभी ध्यान से फोर्थ टर्म में क्या लिखा था, A+3 टाइम्स D लिखा था, राइट। सेकेंड टर्म में क्या था, A+1 टाइम D लिखा था, थर्ड टर्म में A+2 टाइम्स D लिखा था, राइट। इस तरह से अगर देखा जाए तो 10th टर्म में क्या लिखेंगे, A+9 टाइम्स D ही लिखेंगे ना रोहित। 9D. हाँ तो इसी तरीके से अगर चलता जाएगा तो अगर कोई बोलेगा nth टर्म निकालो डायरेक्टली, लास्ट वाला जो टर्म है ना nth टर्म, तो क्या लिख सकते हैं, A+n-1 लेते हैं ना। n-1 ये समझ में आ गया, n-1D ये समझ में आ गया अच्छे से। हाँ सर। जैसे अगर कोई बोलता है कि 24th टर्म लिखना है, तो 24th टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A+24-1 दैट इज 23 टाइम्स D लिख सकते हैं। हाँ सर। तो ये तुम्हारा फर्स्ट फॉर्मूला इस चैप्टर का सीखना। इस चैप्टर में 2 ही फॉर्मूला होता है, उसमें से पहला फॉर्मूला ये है, क्या है वो, nth टर्म, राइट। सो nth टर्म इज गिवन बाय द फॉर्मूला A+n-1 टाइम्स D, राइट। कुछ कुछ बुक्स में ना TN को AN भी लिखते हैं, UN भी लिखते हैं, बट मोस्टली TN ही लिखा जाता है, ठीक है। मोस्टली ये TN ही लिखा जाता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको अच्छे से नोट कर लो। nth term of an arithmetic progression is given by the formula A+n-1 into D. Is that all right? हाँ सर। अगर मेरे को मान लो 6th टर्म लिखना होगा तो क्या लिखेंगे आरोही, A+5. A plus 5D. अरे बाबा जिससे पूछो उससे उसको बोल लेता ना, फिर मैं सबसे पूछूंगा धीरे धीरे करके। कार्तिक अगर मेरे को 14th टर्म लिखना होगा तो क्या लिखूंगा, सर A+13D. वेरी गुड। अगर 17th टर्म लिखना होगा स्वाति तो क्या लिखूंगा, A plus 16D. आरोही अगर मेरे को 17th टर्म लिखना होगा तो क्या लिखूंगा, A+16D. वेरी गुड। अब समझ में आया क्यों ऐसा लिखते हैं, अभी मैंने उसका एक पूरा एक्सप्लेनेशन दिया, राइट। कि जो सेकंड टर्म है ना तो A+D है तो एक ही बार D आया, थर्ड टर्म में क्या आएगा, A+2D आएगा, राइट। फोर्थ टर्म में क्या आएगा, A+3D आएगा। तो ये समझ में आ गया। nth टर्म में क्या होता है, A+n-1 into D। तो इस फॉर्मूला का यूज क्या है ना, जैसे अभी मैंने जो बताया था ना, बहुत सारे जो क्वेश्चंस किए थे तो सब क्वेश्चंस में क्या बोलते थे ना वो, कि जस्ट राइट द नेक्स्ट 2 टर्म्स 3 टर्म्स। अगर डायरेक्टली अब इसमें कोई बोलेगा मेरे को कि राइट द 100th टर्म डायरेक्टली, अगर मान लो ये जो मेरा क्वेश्चन दिया हुआ था दैट इज 1 A+9 and then 25 then 49 then 73 and so on, right। तो इसमें सबसे पहले अगर कोई पूछा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 100th टर्म, राइट, तो बहुत ही सिंपल है। क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग को पता है A का वैल्यू क्या है, 1 है, राइट। और कॉमन 99 डिफरेंस का वैल्यू क्या है,
24 है, राइट। और मेरे को 100th टर्म, तो सबसे पहले 24 फॉर्मूला लिखेंगे, राइट। nth टर्म इज इक्वल्स टू 2376 प्लस n माइनस 1 टाइम्स d, राइट। 2377 2376 हाँ, तो यहाँ पे, अरे बाबा करने तो कंप्लीट कर दो, मौका मिलेगा, सबको मौका मिलेगा परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। पहले सीख लो, सीखने का। प्लस अभी हम लोग को क्या करना है, आरोही प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन द स्क्रीन। ये जो तुम्हारा जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है ना, तो इसमें डायरेक्टली हम लोग 100th टर्म का वैल्यू निकालना चाहते हैं। अगर एक एक करके निकालेंगे देन इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, राइट, यस और नो, it will take a lot of time. So for that reason what I can do, I can use the formula of nth term. Nth term is nothing but a plus n minus 1 into n minus, तो यहाँ पे जो मेरे को 100th टर्म निकालना है, तो t100, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, t100 इज इक्वल्स टू a प्लस 100 माइनस 1, दैट इज 99 टाइम्स d हो जाएगा, राइट। सो दैट इज नथिंग बट a प्लस 99 टाइम्स d। और यहाँ पे a का वैल्यू हमें निकाले थे ना अभी, a इज नथिंग बट 1 प्लस 99 टाइम्स 24, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो क्या 2376 आंसर आएगा, प्लस 1 2376 आएगा क्या, 2377 प्लस 1 2377 77, राइट। ये समझ में आया रोही, हाँ सर। कार्तिक समझ में आ गया। अब जैसे तो इस चैप्टर में ना सबसे आसान चीज क्या होता है कि फर्स्ट टर्म निकाल लो, कॉमन डिफरेंस निकाल लो, इसका जो भी पूछे सब क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। You should always focus on finding the first term value and the common difference value. If you are able to find these two things, rest आराम से हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं होता है, ठीक है। ये समझ में आ गया कार्तिक, Yes, sir. आरोही, हाँ सर। वेरी गुड। एक दो और एग्जांपल ले लेते हैं इस फॉर्मूला का, एंड देन वी विल वाइंड अप फॉर टुडे, ओके, वी विल मीट टुमारो देन। जैसे इसमें क्या है ना कि पहले बोल रहा कि फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी दैट इज 2,7,12। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो जो इंफॉर्मेशन दिया रहता है उसको नोट डाउन करते हैं। सर हो गया सर। यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या होता है, 2। मैं फिर से बोलता हूँ, सर हो गया कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चंस होते हैं, यू शुड ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑलवेज, ठीक है। सब हो गया। वेरी गुड। मैं क्या बोला अभी, फिर से बोलता हूँ, जब भी तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन हो, दुनिया में कोई भी क्वेश्चन, नॉट एनसीईआरटी, आरएस, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, यू हैव टू राइट डाउन द वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म, इज दैट ऑल राइट। हाँ सर। उसके बाद क्या करना होता है, कॉमन डिफरेंस का वैल्यू लिखना होता है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉमन डिफरेंस हियर, आरोही, टेल मी। 5। वेरी गुड आरोही, गुड जॉब यू आर डूइंग। तो इसके बाद क्या करना है, मेरे को 10th टर्म निकालना है। तो सबसे पहले हम 10th टर्म डायरेक्टली नहीं, nth टर्म का फॉर्मूला लिखते हैं। पहले क्या लिखते हैं, nth टर्म इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d, राइट। ये होता है फॉर्मूला। अब इसमें मेरे को 10th टर्म निकालने के लिए बोला है, तो n की जगह हम 10 लिख देंगे, दैट्स इट। सो t10 इज इक्वल्स टू a प्लस 10 माइनस 1 टाइम्स d, दैट इज नथिंग बट a प्लस 9d। ये समझ में आया रोहित? हाँ सर। वेरी गुड। अब क्या करेंगे, जो जो वैल्यू मालूम है, a का वैल्यू 2 है और d का वैल्यू 5 है, राइट। इसके बाद क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, 2 प्लस 45 दैट इज नथिंग बट 47। यहाँ तक डाउट है आरोही? नहीं सर। कार्तिक कोई डाउट है यहाँ तक? No, sir. अक्षत, स्वाति, या मैं कोई डाउट है इसमें? नो सर। No doubt there. पक्का? यस सर। अच्छी बात है, वेरी गुड। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, सब लोग ट्राई करो। मैं लेकिन आंसर कोई नहीं बोलेगा, ठीक है, मैं जिससे पूछूंगा वही बोलेगा।
विच टर्म ऑफ द एपी इज -81। सबसे पहले तुम्हें एक एपी दिया हुआ है 21, 18, 15 एंड सो ऑन, इट इज एन एपी। तो मैं क्या बोला था, जब भी एपी का क्वेश्चन है सबसे पहले तुम्हारा फर्स्ट टर्म लिखो, कॉमन डिफरेंस लगो, उसके बाद कुछ करो। मतलब इतना तो क्वेश्चन देखो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ये दो चीज लिख लो, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, ठीक है। ये क्वेश्चन करो फिर वाइंड अप करेंगे आज के लिए, ठीक है। डन सर। हम्म, ओके सर। करने दो, सब लोग को करने दो। हाँ हाँ, हो गया सर। क्वेश्चन समझ में आया कार्तिक? व्हाट इज द क्वेश्चन आस्क्ड हियर? Yes, sir. आरोही, हैव यू अंडरस्टूड व्हाट इज द क्वेश्चन आस्क्ड हियर? हाँ सर। ऑल राइट, इसमें पूछ रहा है ना कि यू आर गिवन विद एन AP 21, 18, 15 एंड सो ऑन, sometime somewhere it will come -81. So where it will come, whether it will be first term will be -81 or second term will be -81 or 10th term will be -81, what it will be, which term will be -81, that's what you have to find it out. All right, Sir, done. do it. There are two parts in this question, finish it off. Sir, done. Let Arohi also finishes. So ये complete arithmetic progression, there are only two formulas. One formula we have finished today. Next tomorrow, I think this chapter will be over. Okay. उसके बाद only practice, practice, practice. Is it done, Swati? Yes, sir. Is it done, Karthik? Yes, sir. Akshay? डन सर। हाँ सर हो गया। Aman? Yes sir, done. All right. So Arohi, which term it is in -81? -35 सर। हाँ? सर +35। -35 कैसे हो सकता है? माइनस टर्म कभी भी होते हैं क्या? कोई बोलता है कि माई एज इज -11 ईयर्स, माई एज इज 17, -17, ऐसा हो ही नहीं सकता है ना। हाँ तो सर। कोई टर्म हो ही नहीं सकता ना कि -5th टर्म, ऐसा हो ही नहीं सकता है, राइट? हो सकता है क्या प्रैक्टिकली? नॉट पॉसिबल, राइट? सर। आर यू गेटिंग इट, or what I'm telling? सर। All right. Karthik, also is any term 0 here? Yes or no? Yes sir. Yes, sir. It is 0. Okay. We will work together. Okay. We will see this. This is a good question. So first focus here, whether you have understood or not, focus here. Okay. So first of all, whenever we see that the question is on a AP, we will write our first term. So A is equals to 21 and common difference. Common difference कितना आएगा रोही? 3 -3. -3 -3। -3 मतलब 3 और -3 में अब कितना ऐसा ये हाल हो जाएगा, पता चला मेरा जो पढ़ाया हुआ वो बोले कौन पढ़ा दिया ऐसा टीचर। ऐसा मत करो, बेइज्जती मेरे करवाना कम से कम। 3 और -3 में डिफरेंट होते हैं, राइट? 18 - 21 इज नॉट 3, इट इज -3। इज दैट ऑल राइट? हाँ सर। वेरी गुड। अब कहीं पे क्या बोल रहा है ना कि कहीं पे -81 आएगा, जैसे 21, 18, 15 फिर 12 एंड सो ऑन चलता जाएगा, कहीं पे -81 आएगा। कहाँ आएगा मेरे को पता नहीं है, राइट? कहाँ आएगा मेरे को पता नहीं है, लेकिन कहीं पे मान लेते nth टर्म में -81 आएगा, राइट? जस्ट इमेजिन कि nth टर्म में -81 आएगा। इज दैट ऑल राइट? आर यू गेटिंग इट? हाँ सर। -80 कहीं तो आएगा, कहाँ पे आएगा वो पता नहीं है। फर्स्ट टर्म -81 आएगा, या सेकंड टर्म -81 आएगा, या थर्ड टर्म -81 आएगा, या फोर्थ टर्म -81 आएगा, पता नहीं है। तो हम लोग एज्यूम करते हैं कि nth टर्म -81 है। इज दैट ऑल राइट? हाँ सर।
तो एक चीज हम लोग और सीखे हैं ना कि nth टर्म का एक फॉर्मूला सीखे हैं, राइट? अभी क्या सीखे थे? nth टर्म इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d, राइट? और यहाँ पे क्या करते हैं ना, जो वैल्यूज मालूम है वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो nth टर्म का वैल्यू कितना है? -81 इज इक्वल्स टू a इज इक्वल्स टू 21 प्लस n का वैल्यू मालूम नहीं, वही तो निकालना है ना। यहाँ n पे ऐसे क्या निकालना है? n ही निकालना है ना, कि विच टर्म, मतलब n का वैल्यू निकालना है, राइट? -3n। हाँ, तो यहाँ पे क्या करेंगे? n माइनस 1 टाइम्स -3n, क्योंकि d का वैल्यू -3 है। बी केयरफुल, इट इज नॉट 3। ओके, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने का कोशिश करते हैं। -81 इज इक्वल्स टू 21। अब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो n टाइम्स -3 इज -3n, और ये -1 Plus- टाइम्स -3 इज +3। इज दैट ऑल राइट? हाँ सर। यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं सर। ऑलराइट, वेरी गुड। अब इसको क्या कर सकते हैं? जो ये 21 लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? -81 -21, और ये -3 3 को भी इधर ले आएंगे तो -3 हो जाएगा। -3n राइट? Three. तो ये -105 -81 कितना हो जाएगा? -100 -105 -105 एंड दैट इज इक्वल्स टू -3n -3n और अब दोनों तरफ माइनस -105 by -3 105 डिवाइडेड बाय by -3 इक्वल्स टू n, राइट? तो इसमें क्या आ गया तुम्हारा? n का -1 वैल्यू आ जाएगा 35, राइट? -1 ये समझ में आया? हाँ यस सर Yes, sir. तो इसका मतलब क्या हो गया ना कि ये जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है ना, इसको लिखते जाओगे तो 30 टर्म जो आएगा ना वो कितना आ जाएगा? -81 आ जाएगा। ये समझ में आया? हाँ सर। यहाँ पे विच टर्म ऑफ द एपी, विच टर्म ऑफ द एपी मतलब पूछ रहा है कौन सा टर्म? फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, 10th The टर्म। 8th term. तो इसमें क्या आएगा? 35th टर्म विल बी योर 35th term. -81। ये समझ में आया? हाँ सर। Yes, sir. डाउट है यहाँ तक? नहीं। हाँ, sir. वेरी गुड, सब लोग अच्छा कर रहे हैं, गुड जॉब। अब इसी में बोल रहा है कि इसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कहीं पे 0 आता है क्या? तो मान लेते हैं Yes, sir. सेम चीज मान लेते हैं कि मेरा 0 है, राइट? मान सकते हैं ना, और इससे हम n का वैल्यू निकालने का कोशिश करेंगे, राइट? तो हम लोग को पता है, Yes, sir. बचपन से पढ़ते हैं ना एक फॉर्मूला, क्या पढ़े थे बचपन में? nth टर्म इज इक्वल्स टू a प्लस A plus n minus n times d. राइट। तो इसके बाद क्या होता है? सबका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। nth टर्म हम लोग क्या किए थे? 0 है कि नहीं, तो यहाँ पे 0 इज इक्वल्स टू a 21 क्या है? 21 21 n माइनस 1 टाइम्स d, d का वैल्यू D. कितना है? -3 right? तो यहाँ पे 0 इज एज इट इज, 21 इज एज इट इज, 21 और ये -3 plus -3 प्लस 3, n राइट? ये समझ में आया? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 21 प्लस 3 इज 24 -3n, और -3n इधर लेके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 3n is equals to 24 n is equals to 24 n इज इक्वल्स टू 8, राइट? 8 हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 8th टर्म है ना वो 0 आ जाएगा। वैसे लिख करके भी देख सकते हो अगर चाहो तो, वेरिफिकेशन पर्पस के लिए। जैसे पहला टर्म 21 है, फिर 18 है, फिर 15 है, फिर क्या आएगा? 12 आएगा, फिर क्या आएगा? 9 आएगा, 9 फिर क्या आएगा? 6 6 आएगा, फिर क्या आएगा? 3 3 आएगा, 0 फिर क्या आएगा? 0 -3 आएगा, एंड सो ऑन चलता जाएगा। अगर इसको काउंट करोगे तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8th टर्म में 0 आ गया ना? Yes, sir. ये समझ में आया? जैसे हमेशा ध्यान रखना विच टर्म ऑफ एपी, मतलब पूछ रहा है कौन सा टर्म, 5th टर्म 10th टर्म जो भी है ना। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है? यहाँ तक कोई डाउट है किसी को?
नहीं No, सर sir. No, sir. और पढ़ना है? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। सर माँ के बोल रहा है, हाँ बोलो या ना बोलो। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आज पहला दिन है ना, कितना नहीं, मतलब इतना काफी है आज के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं फिर से क्विकली समराइज कर देता हूँ, ध्यान से सुन लो, ठीक है? कहीं पे भी डाउट है तो पूछ लेना। अगर तुम्हें सेट ऑफ नंबर्स दिए हुए हैं और तुम्हें चेक करना है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं, तो क्या करते हैं? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, 10th टर्म माइनस 9th टर्म एंड सो ऑन, लास्ट टर्म माइनस लास्ट बट वन टर्म करते हैं, ठीक है? अगर हमेशा वैल्यू सेम आता है तब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा, अगर वैल्यू सेम नहीं आता है तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं होगा। ये समझ में आया? यस सर हाँ सर। वेरी गुड। अब नेक्स्ट चीज हम लोग क्या सीखे हैं कि अगर मेरे को फर्स्ट टर्म दिया रहता है, कॉमन डिफरेंस दिया रहता है, तो सेकंड टर्म हम लोग इजीली लिख सकते हैं a प्लस डी, राइट? मतलब प्रीवियस वाले टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाओ, नेक्स्ट 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 टर्म मिलता जाएगा, राइट? उससे भी लेकिन आसान तरीका भी जस्ट हम लोग सीखे हैं कि सेकेंड टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं? a प्लस वन डी, राइट? थर्ड टर्म को क्या लिख सकते हैं? a प्लस टू डी। 10th टर्म को क्या 2D. लिख सकते हैं? a प्लस नाइन डी, A plus 9D. 9D. a प्लस 14d एंड सो ऑन, राइट? तो इन जनरल हम लोग क्या सीखे हैं? nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस वन। Minus 1 times D. याद रहेगा? हाँ Yes, सर। sir. खाना खाना भूल जाना, लेकिन ये फॉर्मूला नहीं भूलना है, ठीक है? हाँ सर। ठीक है, तो यहाँ तक खत्म हो गया। और एक और चीज, जब भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन करो, बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन आएगा, लेकिन यू राइट ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल। पहले क्या क्या दिया हुआ है, जैसे फर्स्ट टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, क्या निकालना है, फॉर्मूला लिखो, सब्स्टिट्यूट, ईच एंड एवरीथिंग डू स्टेप बाय स्टेप, ठीक है? ऐसा नहीं कि मैं इसको डायरेक्टली नहीं कर सकता था, बट व्हाई आई हैव रिटन? जस्ट टू मेक यू प्रैक्टिस, ओके? अच्छे से करो, बोर्ड एग्जाम में ना स्टेप के भी मार्क्स मिलते हैं, तो यू शुड राइट ईच एंड एवरी स्टेप इन वेरी डिटेल। इज दैट ऑल राइट? जब Yes, ओलंपियाड का प्रिपेयर करेंगे उसमें Yes, शॉर्टकट sir. करेंगे, लेकिन अभी पूरा लिखना है, ठीक है? Okay, sir. ऑल राइट, तो आज के लिए काफी है या कुछ और चाहिए? आई थिंक No, इतना sir. काफी होगा, आई थिंक, राइट? राइट, Sir, बहुत सारे homework. क्वेश्चन है, बहुत सारा भी करना है, तो आई थिंक आज के लिए वाइंड अप करते हैं, ठीक है? यस सर कोई डाउट है स्वाति? नहीं सर। No, नहीं sir. सर किसी को कोई डाउट नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? तो टॉपिक इजी था सर अच्छा, सर आपने ऐसा है पढ़ाया क्या? अच्छी तरह. अरे बाप रे, ऐसा? सर अच्छी स्वाति ने बात। परेशान नहीं अभी किया. कौन नहीं परेशान किया? स्वाति. स्वाति कहाँ परेशान किया? नहीं किया ना? वही तो, इससे समझ आ गया. अच्छी बात है। सब लोग इस बार मतलब मार्च में हम लोग कोशिश करेंगे ना कि जो बोर्ड एग्जाम होगा ना, तुम लोग भी पेपर लिख लो, 1 महीने में कंप्लीट हो सकता है पूरा सिलेबस 10th वाला, ठीक है? देखते हैं कितने मार्क्स आते हैं। चलो देन, सी यू इन द नेक्स्ट सेशंस, बाय बाय, टेक केयर। बाय सर थैंक यू Bye, Sir, sir. homework. Thank you, Bye, sir. बाय sir. सर थैंक्स फॉर टीचिंग Sir, homework.